Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome back in this online session. Our unit number one is going on. Inside that, real number systems already we studied from last since four lectures. Today is your lecture number five, and in this lecture we will discuss about the large number in practice. So let us move on that concept. So you can also showing this portion from the your supplementary book SB6, and you can also watch carefully this video because of some concepts is going on. So whatever the things you have, that you have to cover. So let us move on this large numbers, which kinds of the numbers that already studies into the real number. So let us move on various parts of this large number. First of all, this is a unit measurements portion. आपको पता होगा कि some of the reason uh, how can we measure some units. So we have learned about the different units that we use to measure length, weight and capacity. So how can we measure the large number of things in our daily routines? So if we want to use the measurements of this particular unit, we have to find out the length, weight and its capacity. So here consider that in the first unit measurement, that should be considered the meter. So in the left one most side displayed some portion that we directly find out its length, height and distance. So if we using this meter having three parameter, length, height and distance. Similar way, if we find out the weight, so obviously it should be considered into the gram. So second figure, in middle figure it displayed the 500 grams, and the third one is the capacity, and capacity always measured into the liter. So here displayed three different things is the meter, gram and liter. All these three parameters are the basic units of measurements. So just you remember this thing. Next one portion is that for larger quantity, that is for the smaller. Now we are going for the larger quantities. We can also add here the one more things for the larger quantity, that is kilo, to measure the basic unit. So here given that distance always be considered the meter, kilometer. So we have to add one prefix here, kilo, then kilometer it should be there. Similar way in weight. So second we considered for the smallest, that is gram. If we put the prefix kilo in front of gram, that becomes a kilogram. And the capacity should be in the smaller part, that is liter. It should be kiloliter when it comes into the larger quantity. It's okay. So it is just differentiate meter to kilometer, gram to kilogram and liter to kilogram. So we have add for the larger quantity, that is kilo. So is this very easy to understand? So there is nothing too hard inside. Next one we can using for the smaller quantity. Same way we are using the adding here the milli, MILLI, that is to using the basic units. So length, when we measure the length, height, all these things we have to using the millimeter inside the smaller quantity. Same way into the weight, milligram is there, and the capacity, that is considered the milliliter. तो दो चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि यदि हम लार्जर क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो बेसिक यूनिट हमारे पास तीन ही है, मीटर, ग्राम एंड लीटर. यदि हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तब हम ऐड करेंगे किलो, that should be considered the kilometer, kilogram and kiloliter. Similar way in the smaller quantity
we add here the milli in the front of all meter, gram and liter. So once we use milli, then millimeter, milligram and milliliter. So these three things for the both of the measurements into the larger quantity as well as for the smaller quantities. तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि कितनी लार्ज होती है. जब लार्ज क्वांटिटी होती है तब हम किलो, मीटर, लीटर एंड ग्राम में यूज करते हैं. और स्मॉल जब होती है, स्मॉलर क्वांटिटी होती है जिसका मेजरमेंट हम यूज करते हैं, तब इसको हम मिली, मीटर, लीटर एंड ग्राम यूज करते हैं. इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव. Now, meter, gram and liter are the basic unit of the measurement. So meter, gram and liter, that are the all are the basic units. So let us move on it. Now, if we are using meter, gram and liter are the basic unit of the measurements, for measuring small quantities we use smaller units, and for the measuring large quantities we use larger quantities. So for the larger units we can say that if we having 1000 kilo, here also using the portion kilo, then for 1000 that should be considered the kilo, hecto that is considered the 100, and for the deca that is considered the 10. So deca, hecto and kilo, that is 1000, 100 and 10. So 1000 basic units, that should be considered the 1 kilogram. 100 basic units of the hecto and 10 basic units of the deca. So here all are having the meter, gram and liter, that is the basic units of it. ये पूरा box है, just you have to remember, and you can also for the practicing these three things. Now let us move on it. यदि वो larger quantity में ऐसा हुआ, क्योंकि ये बेसिक यूनिट्स को कंपेयर करें जब लार्जर यूनिट्स में, और जब हम स्मॉलर यूनिट्स में उसको कंपेयर करें तो क्या होगा. डेका, दैट इज द लार्जर यूनिट्स, ऑब्वियसली सिमिलर वे इन स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज 1/10, that is considered the decimal. Decimal, centimeter, we can also using the word deci, centi and milli. So smallest part, सबसे smallest parts हो जाता है यहाँ पे decimal, then centimeter and milliliter. तो this is the milli, centi and deci, that is 1/10. डेसी मतलब 10 को हमें कंसिडर करना, सेंटीमीटर मतलब हमें 100 को कंसिडर करना, मिली है दैट इज 1/1000. सिमिलर वे डेका मीन्स 10 बेसिक यूनिट, हेक्टो मीन्स 100 बेसिक यूनिट्स एंड किलोग्राम मीन्स बेसिक यूनिट 1000 बेसिक यूनिट. तो ये सब चीज़ से आपको ये पता चल जाता है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी लार्जर यूनिट्स with the help of this basic units meter, gram and liter. Is it clear? तो ये पूरा जो स्मॉलर और लार्जर का क्वांटिटीज टेबल बताया गया है, जस्ट यू हैव टू रिफर मोर एंड मोर. ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट. Now from each larger, how to convert this all the units. So how can we conversion using over here from each larger unit to a smaller unit? We multiplied by 10. अब देख सकते हो कि हर एक लार्जर यूनिट को आप कंसीडर करो तो 10 डेका से स्टार्ट करते हैं. तो जब जब हम लेफ्ट साइड की ओर मूव होते हैं, हर एक नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है. आप देख सकते हो फ्रॉम ईच लार्जर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाइड बाय 10. उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप देख सकते हो कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है, मतलब डेका से हेक्टा, मतलब डेका इज स्मॉलर देन हेक्टा एंड हेक्टो इज स्मॉलर देन किलो. सो ईच numbers should be multiplied by 10. आप देख सकते हो
डेसिमल है, सो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू देयर. So multiplied with decimal is 1 upon 10. So obviously centi, that is 1 upon 10 into 10. That's why 1 by 100 is there. And 1 by 10 into 10 into 10. So that should be considered by 10 more. आप ये कर सकते हो कि 1 by 10 को 10 से मल्टीप्लाइड करो, 1 by 100 को 10 से मल्टीप्लाइड करो, तो आपका स्मॉलर से लार्जर से स्मॉलर की ओर आप बढ़ सकते हो. मतलब जब भी ऐसी कोई पोजीशन आए, कन्वर्जन आए, कन्वर्ट करना है आपको यूनिट को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में जो भी नंबर्स दिए हैं वो सेम यूनिट के होने चाहिए. यदि कोई किलो ग्राम्स में लिखा है और कोई क्वांटिटीज आपको दी गई है ग्राम में, तो इट शुड बी वेरी यूनिक. मतलब सभी जगह ग्राम होना चाहिए या तो सभी जगह किलोग्राम्स होना चाहिए. बट वी नेवर मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ द क्वांटिटीज विथ द डिफरेंट यूनिट. कभी हम उसको मेजर नहीं कर सकते. दैट्स वाई इट्स वेरी यूजफुल टू कन्वर्ट. तो अभी कभी भी आपको लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, तब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखो. ओके, लेट अस मूव ऑन इट. सेकंड थिंग, वंस वी हैव टू मल्टीप्लाइड इट, आप देख सकते हो कि जब हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तब हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करें. तो कैसे हमें मूव होना है, मैं अभी आपको बता दिया कि ऐसे मूव करना है. तो 10 से मल्टीप्लाइड करो. 10 से मल्टीप्लाइड करने से आपका हेक्टो और डेका, ऐसे डेसी, सेंटी एंड मिली हो जाएगी. फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, आपको यहाँ से किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो किलो मीटर टू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड विथ 10. इज इट क्लियर? सिमिलर वे, फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, हाउ कैन वी यूज दिस 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स यहाँ पे यूज किए हैं. कैसे कन्वर्जन करना है, लार्जर टू स्मॉलर. सो मल्टीप्लाइड बाय 10 3 टाइम्स. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 मीटर हो जाएगा. समझ में आ गया ना कैसे मूव करना है. 1 किलोमीटर मतलब हमारी लार्जर क्वांटिटी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो लार्जर टू स्मॉलर करना है. तो हमें कितने स्टेप्स में आगे बढ़ना है, आपको पता है कि किलो है वो मीटर में है. तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी शुड फॉलो द 3 पर्टिकुलर स्टेप्स. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड विथ 10 10 10. 3 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी कंसिडर द 1000 मीटर्स. इज इट क्लियर? तो ये हुआ कन्वर्जन ऑफ द यूनिट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर. Similar way, from each smaller unit to a larger unit, we divide by 10. यदि स्मॉलर में से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसका वाइस वर्सा, लार्जर का स्मॉलर, उसमें स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन वी शुड डिवाइड बाय 10. सो दिस इज ऑल्सो बी वेरी इजियर थिंग. यही चीज़ आपको याद रखना है. फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर आप कंसिडर करो, तो यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज सेंटी का जो वहाँ पे पोर्शन है, वहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करना है. देन वी शुड डिवाइड इट विथ द 10. How to use these steps? For using 2 steps only, divide by 10 2 times. 1 centimeter is equal to 1 by 10, 1 by 10. तो जब हम 1 by 10 1 by 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड किया, फिर 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड किया, then whatever we studied, that is 1 upon 100 meters is there. Is it clear? तो ये हुआ आपका कन्वर्जन फॉर द लार्जर यूनिट टू स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट. सो लेट अस मूव ऑन इट.
From each larger unit to smaller unit, we multiplied by 10, and from smaller unit to a larger unit, we divide by 10. Now let us move on it. Conversion of unit 1 kilometer, that should be you should remember this. 1 kilometer, it should be 1000 meter. 1 meter, it should be 100 centimeter, and 1 meter, that is 1000 millimeter. That is a length part. ये लेंथ पार्ट की बात कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर का मीटर कितना होता है 1000। 1 मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है 100, और 1 मीटर का मिलीमीटर कितना होता है 1000 millimeter. So that is for the length. Now we should use for the weight. 1 kilogram, that should be 1000 gram, and 1 gram is equal to 1000 milligram. So that is also be smallest larger to smallest conversion, and convert करने के बाद ये सब चीज यदि आपको याद रह जाती है तो you can directly show that. So that is for the weight, and the third one is for the capacity, that is 1 kiloliter. Sorry, yes, 1 kiloliter is equal to, obviously, 1000 liter is there, and 1 liter should be 1000 milliliter is there. तो हर एक लार्ज क्वांटिटी में एक स्मॉल कन्वर्जन यूनिट होता है, और वो कन्वर्जन यूनिट क्या होता है वो हमें याद रखना है. So for the length, weight and capacity, all these three having the total 7 conversion of unit, you should remember compulsory. Is it clear? So now let us move on another thing. So now let us move on for the NCERT book, page number 12 and 13. Whatever the group practice is here, here not we are simultaneously learn all into the group because it's online. So whatever the portion is displayed in front of the screen, you just carry it forward. NCERT, try this page number 12 and 13. Just we check it out. First of all, इसमें क्या है? All these things you have to write in your fair book today, and this is your homework from here. Okay, यहाँ से आपका सब homework रहेगा. So you should try it that how to solve this from the page number 12. So first thing is that here using the how many centimeter make a kilometer. कितने सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बनाता है. तो हमें क्या करना होगा, ये जो पूरा टेबल है वो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे अपनी बुक में. ये आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. फ्रॉम ईच लार्जर यूनिट टू ए स्मॉलर यूनिट, हमें क्या करना है, लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो वी मल्टीप्लाइड बाई 10, एंड फ्रॉम ईच स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट वी डिवाइड बाई 10. ये दोनों चीज है वो कंबाइनली हम यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10. ओके, तो ये चीज क्या है आपके एक हिंट के लिए, और आपका सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको पता चल जाए कि कैसे हमें मूव होना है, कितने स्टेप्स हमें मूव करना है. तो अभी हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि वो हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर. सो फ्रॉम सेंटीमीटर टू किलोमीटर, हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से मीटर की ओर जाना है. सेंटीमीटर को मीटर की ओर, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तभी हम यूज कर सकेंगे ना किलो, यानी ये. तो हमें कैसे मूव होना है, फ्रॉम सेंटीमीटर तो किलोमीटर, इट इज 5 स्टेप. आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5. So from centimeter to kilometer it is 5 steps. So multiplied by 10 5 times. हमें कितने कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 times. So 1 kilometer is equal to 10 10 10 10 and 10. 5 times हम 10 करेंगे क्योंकि हमारे टेबल में कितने स्टेप है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर. ओके, तब सेंटी से किलो की तरफ हमें कितने स्टेप्स आपको दिखाई देते हैं ना, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे 5 स्टेप्स
होते हैं। तो कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है ना। So we should multiplied it by 10 5 times. So 10 into 10 into 10 into 10. So that should be considered the centimeter. तो 1 किलोमीटर यानी लार्जर यूनिट में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 लाख सेंटीमीटर्स आए आपके आंसर में। ओके, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमारा क्वेश्चन बेसिक वही था। तो कितना आया 1 लाख, क्योंकि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा 1 लाख। सो दिस इज अ वेरी सिंपल, बट यू शुड राइट इन योर फेयर बुक अंडर द हेडिंग ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अब शायद आपको माइंड में सेट हो गया कैसे कन्वर्जन करना है। नाउ सेकंड वन, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक ए किलोग्राम्स, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। अब हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक ए किलोग्राम, तो ये जो पोर्शन है हर एक क्वेश्चन में आपको कॉमन रख देना है ये पूरा टेबल, और कन्वर्जन के ऊपर लिखना है फ्रॉम ईच लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड फ्रॉम ईच स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट वी डिवाइड बाय 10। अब आप देख सकते हो कि मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम्स मतलब वी शुड यूज हियर फ्रॉम मिलीग्राम टू किलोग्राम, it is always be used the 6 steps, then it should be larger to smaller, क्योंकि हमें 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है वो बताना है। तो फ्रॉम मिलीग्राम टू किलोग्राम it should be 6 steps, 1 2 3 4 5 and 6. So this is a 6 steps from milli to kilo. So multiplied by 10 6 टाइम, तो 10 हमें 1 किलोग्राम में 10 कितने बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 टाइम, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज कन्वर्ट 1 किलोग्राम इंटू मिलीग्राम। So 10 lakh, that is the answer of it, that is available in 1 किलोग्राम। तो ये चीज आपको याद रख लेना है, वो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फॉर दैट, a box contains 2 lakh medicine tablet, each weighing 20 milligrams. What is the total weight of all the tablets in the box in the gram and kilogram? That is a word problem mainly। आपको याद रखना है कि टोटल वेट आपको फाइंड करना है। तो हाउ मेनी मेडिसिन अवेलेबल 2 लाख, सो टोटल वेट इज इक्वल टू number of tablets multiplied by weight of each tablet। आपको बताया गया कि हर एक टैबलेट 20 मिलीग्राम की है, और हाउ मेनी मेडिसिन इज देयर 2 lakh, so number of tablets it should be 2 lakh multiplied with 20 mg, so answer will be 40 lakh मिलीग्राम। नाउ हमें क्या करना है कि मेडिसिन है वो मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वेट इन ग्राम्स मिलीग्राम टू ग्राम, क्योंकि हमें फाइनली टैबलेट जो है वो बॉक्स में कितने ग्राम की है, ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, यानी ग्राम्स में भी कन्वर्ट करना है और किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम टू ग्राम कन्वर्जन के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे, मिलीग्राम से लेके ग्राम तक। तो आपको जो टेबल है वो टेबल अपने रफ पेज में रखना ही है, जो अभी मैंने अगले क्वेश्चन में बताया। उसमें आपको मेजर कर लेना है कि मिलीग्राम टू ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यदि 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स इनटू द larger to smaller, so we have to multiply the 10 3 times, so 10 3 times we should use, but here milligram to gram, so it should be smaller to larger, then it should be considered division
of this 10 with 3 times. तो हम क्या करेंगे, 1/10 1/10 1/10, हम कितनी बार उसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स. So 1/10 1/10 1/10, it should be considered the divide 3 times, so it should be 1000 is there. So 40,000, 40 lakh, that is the total weight of the medicine, divide with 1000, that should be 4000 gram. तो ये हो गया milligram to gram. Similar way in kilogram, so from gram to kilogram, that should be smaller to larger, in also be using in 3 steps. So we should also 1/10 1/10 1/10, so 1 all 10, that should be considered the 1000. So 4000 को कितने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, that should be 4 किलोग्राम. तो ये हुआ आपका ग्राम कन्वर्जन. इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे. तो ये दोनों क्वेश्चन आज के होमवर्क में आज कंप्लीट करना है एनसीईआरटी के बुक में, और आप अपनी फेयर बुक में भी लिखो, एक ही बार लिखो फेयर बुक में, बट इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी. तो आज हम थोड़े कन्वर्जन यूनिट्स के बारे में सीखा. जो भी वीडियोस में मैंने बताया तो सभी टेबल इम्पोर्टेंस है, तो ये टेबल का स्टडी कीजिए. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.